Good evening. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. Now, of late, many candidates are asking, sir, when joining will happen? More especially the IBPS selected candidate, maybe FCI candidate, maybe other candidates. Now, here I will discuss some important things that will give you insight what is happening around us. Now, there are 3 points in this triangle. One is you, that is candidate who is seeking job. Second point is employer, that is the organization who wants you to join. Third point is the public utility services like railways, buses, other mode of transport. Now, unless these 3 are on same platform, things will not materialize. Now I will explain it by an example. There were some candidates, those were very curious why ESIC is not calling them for document verification. Now they have released the letter for document verification for 30th June. Now one candidate is sitting in Calcutta and she has to report at Mumbai. Letter has come, but a new worry has started. How to reach from Calcutta to Mumbai on 30th June when airlines are not functioning at its level, train services are not there. Similar situation may be with other sort of candidates. Those were always asking when joining will happen. The moment joining letter has come, now new worry has started, how to join. So what is the remedy with the organization or the employer? So some employers are waiting for clarity to happen. Even if they release the letter of joining, even they issue the dates of examination. Now how to happen it is another important aspect. So now our country is passing through a unique situation. On one side, everybody wants that activities should start and that activity related to them. On the other side, they are apprehensive if that activity starts, how to complete that activity. Say somebody asks you to report for exam on first week of July. The new worry will start, how to reach the venue. So naturally the policy makers are in fix. It is not on account of that they want to delay it. It is delay is happening on account of factors behind their control. And as a prudent person, we have to understand this. And the time is the testing of our patience. Unless things improves, unless a conducive environment happens for joining, what is fun of issuance of a joining letter? Simply think over it and then have the anxiety. This is my choice. Keeping anxiety unnecessary will only spoil your mind, your health. Rest is your choice. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. काफ़ी मैंने ग्रुप्स देखे हैं, काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि सर बताओ कब ज्वाइनिंग शुरू होगी, कब ज्वाइनिंग शुरू होगी, क्यों नहीं ज्वाइनिंग शुरू हो रही, क्या हो गया. अब हम एक सिचुएशन देखते हैं कि इसमें इस ट्रायंगल में 3 हिस्से हैं. एक है आप जिसको जॉब चाहिए, एक है वो संस्था जिसने जॉब देनी है, वो दूसरा बिंदु है, और तीसरा बिंदु है पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज. अब जब तक तीनों एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होंगे, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा. अब एक एग्जांपल लेते हैं, हम ESIC के कैंडिडेट वेट कर रहे थे, सर मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही, मेरी ज्वाइनिंग क्यों नहीं आ रही. अब ज्वाइनिंग आ गई. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 30 जून को बुला लिया गया. अब कैंडिडेट है कलकत्ता में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मुंबई में. अब दूसरी वरी शुरू हो गई है कि सर कलकत्ता से बॉम्बे कैसे जाए. अब ऑर्गेनाइजेशन ने तो बुला लिया और आपको लेटर मिल गया, चिंता क्या शुरू हो गई, कैसे जाएं.
तो आप ये देखिए कि यदि आज कोई संस्था किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी को बुला भी लेता है या ज्वाइनिंग प्रोसेस शुरू भी कर लेता है, क्या कैंडिडेट उस पर पहुंच सकता है? इसी तरह जो एग्ज़ाम की वेट कर रहे हैं, अब अगर मान लीजिए वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड कर लेता है कि मैंने फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एग्ज़ाम करना है, तो आप ही ये कहना शुरू कर देंगे पहुंचेंगे कैसे सेंटर पे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कंट्री एक ऐसे पेक्यूलियर सिचुएशन से मतलब गुजर रहा है जिसके अंदर किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। हर व्यक्ति होप लगा के बैठा है कि कुछ सिचुएशन नॉर्मल हो तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर दें। अब मान लो आपने एग्ज़ाम देना है तो आपको चिंता जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए, पर एग्ज़ाम हो कैसे? आपको नौकरी मिलनी है, आपको ये जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाए, पर प्रश्न ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो कैसे, आप पहुंचोगे कैसे वहाँ पे? तो इसीलिए ये एक विषय है सोच विचार का कि जो संस्थाएं हैं वो कैच-22 सिचुएशन में है। अगर वो बुला लेती हैं तो कैंडिडेट नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं बुलाती हैं तो रोज़ क्वेरीज आ रही हैं कि जी बुला क्यों नहीं रहे। तो इसको हमें संयम ही इसका एक मार्ग है। सबको संयम बरतना पड़ेगा। जैसे जैसे हालात नॉर्मल होते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी सिचुएशंस क्लियर होंगी। तब तक ये स्थिति चलती रहेगी, और अगर हम इसके अंदर परेशान होते रहते हैं, रोज़ एक ही प्रश्न करते रहते हैं, तो इसमें किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा अपना नुकसान हो रहा है। अभी मैंने देखा एक कमेंट किया किसी ने कि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ, मैं वो हो गया हूँ। इससे क्या हासिल होगा? इस फ्रस्ट्रेशन से किसको फ़ायदा मिलेगा? किसी को भी नहीं। आपके फ्रस्ट्रेट होने से कोई जल्दी एग्ज़ाम हो जाएगा या ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू हो जाएगी या कोरोना भाग जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। पूरी दुनिया लगी हुई है इसको कंटेन करने में। कल एक दवाई अप्रूव हो गई, आज एक और दवाई लॉन्च हो गई, उसमें क्लेम भी हो रहा है कि हम 3 दिन से 7 दिन में ठीक कर लेंगे। भगवान करे ये कामयाब हो जाएं दवाइयाँ, चीज़ें कंटेन हो जाएंगी, सारी चीज़ें होने लगेंगी। पर ऐसा नहीं है कोई प्रयास नहीं कर रहा। डिपार्टमेंट प्रयास हो रहे हैं जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए, कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी नौकरी मिल जाए, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है जल्दी से जल्दी बस सर्विस ट्रेन सर्विस स्टार्ट हो जाए। पर उन सब चीज़ों के बीच इफ़ एंड बट्स हैं। कुछ हालात किसी के हाथ में नहीं है। आज मान लो DTC की बस शुरू हो गई दिल्ली के अंदर, तो क्या सब लोग उसमें बैठ रहे हैं? नहीं। आज एक ट्रेन सर्विस शुरू हो गई, क्या लोग ट्रेन सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं। आज एक मार्केट खुल गई है, क्या सब लोग पूरी शॉपिंग कर रहे हैं? नहीं। तो ये सब चीज़ें सोचने की है कि अगर मान लो कोई डिसीजन ले भी लेता है, किसी चीज़ को चालू भी कर देता है, तो दूसरी तरफ से क्या व्यक्ति तैयार है उन परिस्थितियों में उस ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में। यदि अधिकांश लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, यदि अधिकांश लोग सेंटर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो कोई भी एग्जामिनेशन कैसे होगी? तो ये पेशेंस का विषय वस्तु है। ऐसा नहीं है ये नहीं होगा, सब कुछ होगा। हमें अपना काम करते रहना, हमें अपनी पढ़ाई करते रहना है। जैसे ही हालात कंट्रोल में आते हैं, जिसके गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है, डिफरेंट एजेंसीज पूरा प्रयास कर रही हैं, नेचुरल है सारी चीज़ें होने लगेंगी। अब ये 15 दिन में भी हो सकती हैं, 1 महीने में भी हो सकती हैं, 2 महीने में भी हो सकती हैं। अब इसमें कोई आपको टाइम स्लॉट नहीं दे सकता। कई लोग मुझसे पूछते हैं सर ये नोटिफिकेशन कब आएगा? अब कोई कैसे बताएगा? नोटिफिकेशन तो आना है, ये तो निश्चित है, पर किस दिन वो रिलीज़ करेंगे, ये तो जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनको जब लगेगा कि सारी चीज़ें पुट इन प्लेस हैं, तभी तो वो डिसीजन लेंगे इसके ऊपर। तो हमें पेशेंस रखनी होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।